Hello everyone, welcome to all of you in our today's video. Second chapter, from trade to territory, the company establishes power. Next topic, setting up a new administration. Warren Hastings, Governor General from 1773 to 1785, was one of the many important figures who played a significant role in the expansion of company power. By his time, the company had acquired power not only in Bengal but also in Bombay and Madras. British territories were broadly divided into administrative units called presidencies. There were three presidencies: Bengal, Madras, and Bombay. Each was ruled by a governor. The supreme head of the administration was the Governor General. Warren Hastings, the first Governor General, introduced several administrative reforms, notable in the sphere of justice. From 1772, a new system of justice was established. Each district was to have two courts: a criminal court, Faujdari Adalat, and a civil court, Diwani Adalat. Maulvis and Hindu Pandits interpreted Indian laws for the European district collectors, who presided over civil courts. The criminal courts were still under a Qazi and a Mufti, but under the supervision of the collectors. A major problem was that the Brahmin Pandits gave different interpretations of local laws based on different schools of the Dharmasastra. To bring about uniformity in 1775, 11 Pandits were asked to compile a digest of Hindu laws. N.B. Hallett translated this digest into English. By 1778, a code of Muslim laws was also compiled for the benefit of European judges. Under the Regulating Act of 1773, a new Supreme Court was established, while a Court of Appeal, the Sadar Nizamat Adalat, was also set up at Calcutta. The principal figure in an Indian district was the collector. As the title suggests, his main job was to collect revenue and taxes, maintain law and order in his district with the help of judges, police officers, and darogas. His office, the collectorate, became the new center of power and patronage that steadily replaced previous holders of authority. प्रथम विषय है नए शासन की स्थापना। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, जो 1773 से 1785 तक कार्यरत थे, उन बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक थे जिन्होंने कंपनी की ताकत फैलाने में अहम भूमिका अदा की थी। वारेन हेस्टिंग्स के समय तक आते आते कंपनी न केवल बंगाल बल्कि बम्बई और मद्रास में भी सत्ता हासिल पा चुकी थी। ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासनिक इकाइयों में बटे हुए थे, जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। उस समय तीन प्रेसिडेंसी थे: बंगाल, मद्रास और बम्बई। हर एक का शासन गवर्नर के पास होता था। सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होते थे। वारेन हेस्टिंग्स ने कई प्रशासनिक सुधार किए। न्याय के क्षेत्र में उनके सुधार खास तौर से उल्लेखनीय हैं। 1772 से एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में दो अदालतें होंगी: फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे। मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानून की व्याख्या करते थे। फौजदारी अदालत अभी भी काजी और मुफ्ती के अंतर्गत ही थी, लेकिन वे भी कलेक्टर की निगरानी में ही काम करते थे। एक बड़ी समस्या यह थी कि ब्राह्मण पंडित धर्मशास्त्र के अलग अलग शाखाओं के हिसाब से स्थानीय कानूनों की अलग अलग व्याख्या कर देते थे। इस भिन्नता को खत्म करने और समरूपता लाने के लिए 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानूनों का एक संकलन तैयार करने का काम दिया गया या सौंपा गया वर्क। N.B. हॉलहेड ने इस संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद भी किया। 1778 में यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों की भी एक संहिता तैयार की गई थी। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसके अलावा कलकत्ता में अपीलीय अदालत, सदर निजामत अदालत की भी स्थापना की गई।
भारतीय जिले में कलेक्टर का सबसे बड़ा ओहदा होता था। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, उसका मुख्य काम लगान और कर इकट्ठा करना तथा न्यायाधीशों, पुलिसों, अधिकारियों व दरोगाओं को सहायता देना था। साथ ही उनके सहायता से जिले में कानून व्यवस्था को बनाए रखना भी उनका वर्क था, काम था। उनका कार्यकाल या वक्त जो था उनको मिला था काम करने को, वो कलेक्ट्रेट सत्ता और संरक्षण का एक नया केंद्र बन गया था तभी, जिसने पुराने सत्ता केंद्रों को हाशिए पे ढकेल दिया था। हाशिए में कहने का मतलब है उन्हें अलग थलग कर दिया गया था। सब टॉपिक, द कंपनी आर्मी। Colonial rule in India brought in some new ideas of administration and reform, but its power rested on its military strength. The Mughal army was mainly composed of cavalry, sawars, trained soldiers on horseback, and infantry, that is, paidal foot soldiers. They were given training in archery, tir andazi, and the use of sword. The cavalry dominated the army, and Mughal state did not feel the need to have a large professionally trained infantry. The rural areas had a large number of armed peasants, and local zamindars often supplied the Mughal with paddle soldiers. A change occurred in the 18th century when Mughal successor states like Awadh and Banaras started recruiting peasants into their armies and training them as professional soldiers. The East India Company adopted the same method when it began recruitment for its own army, which came to be known as the Sepoy Army, or the Indian words Sipahi meaning soldiers. As warfare technologies changed from the 1820s, the cavalry equipments of the company's army declined. This is because the British Empire was fighting in Burma, Afghanistan, and Egypt, where soldiers were armed with muskets and matchlocks. The soldiers of the company's army had to keep pace with changing military equipments, and its infantry regiments now became more important. In the early 19th century, the British began to develop a uniform military culture. Soldiers were increasingly subjected to European style training, drill, and discipline that regulated their life far more than before. Often, this created problems since caste and community feelings were ignored in building a force of professional soldiers. Could individuals so easily give up their caste and religious feelings? Could they see themselves only as soldiers and not as members of communities? What did the Sipais feel? How did they react to the changes in their lives and their identity? That is their sense of who they were. The revolt of 1857 gives us a glimpse into the world of the Sepoys. You will read about this revolt in chapter 5. उपविषय, कंपनी की फौज। कंपनी के साथ भारत में शासन और सुधार के नए विचार भी साथ आए, लेकिन उसकी असली सत्ता सैनिक ताकत में थी। मुगल फौज मुख्य रूप से घुड़सवार यानी वे सवार जो घोड़े पर चलते हैं, प्रशिक्षित होते हैं, और पैदल सेना थी। उन्हें तीरंदाजी, तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया जाता था। सेना में सवारों का दबदबा रहता था और मुगल साम्राज्य को एक विशाल पेशेवर प्रशिक्षण वाली पैदल सेना की जरूरत महसूस नहीं होती थी। ग्रामीण इलाकों में सशस्त्र किसानों की एक बड़ी संख्या थी। स्थानीय जमींदार मुगलों को सुरक्षित और जो ज़रूरत होती थी उन सब की ज़रूरत पड़ने पर पैदल सिपाही मुहैया करा देते थे। 18वीं सदी में जब अवध और बनारस जैसे रियासतों में किसानों को भर्ती करके उन्हें पेशेवर सैनिक प्रशिक्षण दिया जाने लगा, तो यह सूरत बदलने लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अपनी सेना के लिए भर्ती शुरू की तो उन्हें भी यही तरीका अपनाया। अंग्रेज अपनी सेना को सिपॉय, जो भारतीय शब्द में सिपाही कहा जाता है, जो आर्मी है उन्हें, आर्मी को हम अभी सिपाही कहते हैं, वो सिपॉय उन्होंने पुकारा। 1820 के दशक से जैसे जैसे युद्ध तकनीक बदलने लगी, कंपनी की सेना में घुड़सवार टुकड़ियों की ज़रूरत कम होती गई। इसकी वजह यह थी कि ब्रिटिश साम्राज्य बर्मा, अफगानिस्तान और मिस्र में भी लड़ रहे थे।
जहाँ सिपाही मस्केट यानी तोड़ेदार बंदूक जो लिए रहते हैं उन्हें और मैचलॉक से लैस होते थे वे। कंपनी की सेना के सिपाहियों की बदलती सैनिक आवश्यकताओं को अगर ध्यान में रखना पड़ता या रखना होता था, और अब उसकी पैदल टुकड़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही थी। 19वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेज एक संपूर्ण या समरूप सैनिक संस्कृति विकसित करने लगा था। सिपाहियों को यूरोपीय ढंग का प्रशिक्षण, अभ्यास और अनुशासन सिखाया जाने लगा। अब उनका जीवन पहले से भी ज्यादा नियंत्रित था। इस कोशिश में कभी-कभी समस्याएं भी आ जाती थी, क्योंकि पेशेवर सिपाहियों की सेना खड़ा करने के चक्कर में अंग्रेज कई बार जाति और समुदाय की भावनाओं को नजरअंदाज भी कर देते थे। भले लोग अपनी जातीय और धार्मिक भावनाओं को इतनी आसानी से कैसे छोड़ दे सकते थे या छोड़ देते? क्या वे खुद को अपने समुदाय का सदस्य मानने के बजाय सिर्फ सिपाही मान सकते थे? सिपाही क्या महसूस करते थे? अपने जीवन और अपनी पहचान यानी वे कौन हैं, इस बात के एहसास में जो बदलाव आ रहे थे, उनको सिपाहियों ने किस तरीके से देखा? 1857 का विद्रोह हमें सिपाहियों की इस दुनिया की झलक दिखाती है, और इस विद्रोह के बारे में आप चैप्टर 5 में यानी अध्याय 5 जो है उसमें आप पढ़ेंगे भी। Conclusion. Thus, the East India Company was transformed from a trading company to territorial colonial power. The arrival of new steam technology in early 19th century also added this process. Till then, it would take anywhere between 6 and 8 months to travel to India by sea. Ships reduced the journey time to 3 weeks, enabling more Britishers and their families to come to a far off country like India. By 1857, the company came to exercise direct rule over about 63% of the territory and 78% of the population of the Indian subcontinent. Combined with its indirect influence on the remaining territory, the population of the country, the East India Company had virtually the whole of India under its control. तो बच्चों, निष्कर्ष इसका क्या निकलता है इस चैप्टर का? ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई। कॉलोनियल मतलब औपनिवेशिक। 19वीं सदी की शुरुआत में नई भाप तकनीक के आने से यह प्रक्रिया और तेज हो गई। तब तक समुद्र मार्ग से भारत पहुंचने में 6-8 माह का समय लग जाता था। भाप से चलने वाले जहाज़ों ने यह यात्रा 3 हफ्तों में समेट दिया, यानी अब यात्राएं काफ़ी सीमित हो गई। इसके बाद तो ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज और उनके परिवार भारत जैसे दूर देश में आने लगे। 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63 अर्थात 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो गया। से देश के जो शेष भूभाग और आबादी थी उन पर कंपनी का अप्रत्यक्ष रूप प्रभाव था ही। इस प्रकार व्यवहारिक स्तर पर अगर ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत को अपने नियंत्रण में ले ही चुकी थी। तो आज हम लोगों ने सेकेंड चैप्टर के लास्ट टॉपिक सेटिंग अप अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन, उसके सब टॉपिक द कंपनी आर्मी और कंक्लूजन, इसका स्टडी किया। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो के द्वारा आप लोगों के डाउट्स क्लियर हुए होंगे। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।